Good morning, students. So, we are studying economics chapter 5 and it is on the end. Today we will complete the chapter. So, what we have studied till now is the definition of money, barter system, drawbacks, forms of money, that is fiat money, fiduciary money, full-bodied money and credit money. And also we studied supply of money, means availability of money with people. Its measurement is P plus DD plus OD. I hope you have learned. And also we studied net demand deposit and gross demand deposit, term deposit and demand deposit. Today we will study from page number 139, in which a ray diagram is given about the measurement of money supply. I am going to read it for your revision. M1 is equal to, there are 3 points given: currency with the public, demand deposits of the people with the commercial bank, and other deposits with reserve bank. And under other deposit with reserve bank is included demand deposit with reserve bank of public financial institutions like NABARD, demand deposits with reserve bank of foreign central government and central banks, demand deposits of international financial institutions like IMF, International Monetary Fund, and World Bank. Now our topic is who supplies money, which is very much clear till now, and after reading it, it will be more clear to us. It says suppliers of money include Central Bank of the country, RBI in India. RBI is the Central Bank of India. Do you know what is Central Bank? Central Bank is the head of the bank, head of the banking system in a country, which controls all other banks, which also issues license to the other banks, and directions they also give to the bank time to time. Supplier of money include Central Bank, that is RBI, commercial banks, and the government also. I told you government is also a supplier of money. In India, RBI is the principal supplier of money. RBI issues currency on the basis of minimum reserve requirements. RBI has to maintain a minimum reserve to issue currency. We'll study about it. Under this system, Reserve Bank maintains a minimum reserve of rupees 200 crore in the form of gold and foreign security. Of this reserve, value of the gold must be rupees 115 crore. So, it is compulsory for RBI to maintain a minimum reserve of 200 crore in the form of gold. अगर RBI को नोट इश्यू करना है कभी भी, तो RBI के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में होना चाहिए, जिसके अंदर भी गोल्ड का प्रपोर्शन 115 करोड़ से कम नहीं हो सकता. मतलब RBI को कम से कम 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है अपने पास हमेशा, और टोटल रिजर्व होता है 200 करोड़, जिसके अंदर फॉरेन सिक्योरिटीज यानी कि फॉरेन कंट्रीज के गवर्नमेंट के बॉन्ड, डिवेंचर, वहां की सेंट्रल बैंक के डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज मतलब यही होता है शेयर्स एंड डिवेंचर, जो कि ऑथेंटिकेटेड हो, जो कि फॉरेन कंपनीज के हों या फॉरेन गवर्नमेंट के हों. ओके, दैट इज नॉन एज फॉरेन सिक्योरिटीज. सो कॉमर्शियल बैंक्स आर द सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. आरबीआई तो हमको समझ में आ गया कि आरबीआई मनी सप्लाई क्यों है, सप्लायर क्यों है, बिकॉज आरबीआई नोट्स इश्यू करता है. मगर कॉमर्शियल बैंक मनी का सप्लायर क्यों है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक मार्केट में क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उधार पैसे देता है, और आरबीआई जो मनी लोन देता है वो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में देता है, और डिमांड डिपॉजिट मनी की सप्लाई में इंक्लूड होते हैं. मैंने बताया था आपको, दैट इज वाई कॉमर्शियल बैंक इज आल्सो नॉन एज सप्लायर ऑफ मनी. कॉमर्शियल बैंक are the second significant source of money supply. Unlike the central bank, commercial banks do not have the authority of issuing currency. Central bank के पास नोट इश्यू करने की अथॉरिटी तो नहीं है,
द कॉमर्शियल बैंक कैनॉट इशू नोट्स, कॉमर्शियल बैंक नोट्स और कॉइन्स इशू नहीं कर सकते, yet they are the suppliers of money as they create money by way of demand deposits. As I told you, commercial banks can also create money in the economy in the form of demand deposits. These deposits serve as supply of money because these are stackable deposits. As we have already studied, demand deposits are comes under the supply of money because these are stackable deposits. And I have also told you the definition of checkable deposits, which is written again here. People can withdraw or transfer money by writing check. Money created by the commercial bank by way of demand deposit is called bank money. So underline this point. The question may come, what is bank money? So bank money is the money which is created by the commercial bank by way of demand deposit. Next page, page number 140. Government is the third source of money supply in the country. Now government is also the supplier of money. In India, the Ministry of Finance issues 1 rupee notes and coins of all denominations. This was also told by me before. The government is also supplier because the Ministry of Finance issues all the coins and 1 rupee notes in India. Now the next is bank money and high powered money. What is bank money? We have already studied. The credit created by the commercial bank, the demand deposits created by the commercial bank by way of loan is known as bank money. Bank money refers to the demand deposits of the people with the commercial banks, उसको हम बैंक मनी कहते हैं. हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी is the sum total of currency held by the people, vault cash of the commercial bank and cash reserves of the commercial bank with the RBI. This is called monetary base or base money in the economy. तो हाई पावर्ड मनी का मतलब है जितना भी टोटल कैश अवेलेबल है कंट्री के अंदर. अब यहां पर कैश सबका लिया जाएगा. कैश किसके पास हो सकता है? पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास और बैंकिंग सिस्टम के पास. इन तीनों के पास जितना भी कैश है वो सारा हाई पावर्ड मनी कहलाएगा. गवर्नमेंट के पास नहीं, सेंट्रल बैंक के पास और कॉमर्शियल बैंक के पास. बिकॉज गवर्नमेंट इज इटसेल्फ ए कंट्रोलर. तो हाई पावर्ड मनी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना कैश मनी होता है वो बहुत ही क्विकली स्पेंड हो सकता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर होती है. चेक आपसे कोई एक्सेप्ट करे ना करे मगर कैश हमेशा एक्सेप्टेबल होगा, ये आप लोग जानते हैं. दैट इज व्हाई द कैश available with the people, currency available with the people and commercial banks and RBI is known as monetary base or high powered money. Note, while currency held by the people is a part of money supply, vault cash of the commercial bank as well as cash reserves of the commercial bank with RBI are not a part of money supply. As already noted, stock of the money held by the suppliers of money is never treated as a part of money supply. So this is true. We know that high powered money का मतलब ये थोड़ी है कि ये सप्लाई ऑफ मनी में आ गया, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ कौन सा कैश आता है? जो कि पब्लिक के पास है. आरबीआई के पास जो कॉमर्शियल बैंक का पैसा जमा है या पब्लिक का पैसा जो कॉमर्शियल बैंक के अंदर जमा है वो तो ठीक है. आरबीआई के पास जो पैसा जमा है वो मनी की सप्लाई में नहीं आएगा और जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं वो भी नहीं आएंगे. नाउ एक चीज आई है इसके अंदर, वॉल्ट कैश. वॉल्ट कैश का मतलब होता है जो कैश बैंक के पास कैश फॉर्म में पड़ा है उनके वॉल्ट में. वॉल्ट मतलब लॉकर, तिजोरी. उनके अंदर, उनके वॉल्ट के अंदर जो पैसा है वो सारा वॉल्ट कैश कहलाएगा.
HOTS. State the principal components of money supply that we have already read. The principal components of money supply are currency, notes plus coins held by the public, demand deposits of the people with the commercial banks, and also other deposits, demand deposits with RBI of domestic and foreign institutions other than of the government of the country, and commercial banks within the country. ये बार बार रिपीट हो रहा है, अपने को अच्छी तरीके से आ गया. P plus DD plus OD are the principal components of money supply. Second HOTS is, why are cash deposits of the government and of the commercial banks with the RBI not treated as a part of money supply? So this is again repetition, क्योंकि ये सप्लायर्स का पैसा है और सप्लायर्स का पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता. Because government and commercial banks are creators, suppliers of money, and money held by the creators, suppliers of money is never treated as a part of money supply. So that is the HOTS number 2. Now you have to do all the questions. The objective type questions are not to be done in the notebook. True and false, all these things you have to study carefully. Fill in the blanks also. You have to study in the book, matching the correct statement also. And the question answers which are already given, solved in the book, also you have to read these questions very carefully. If you have any doubt, you can ask me. For example, page number 145, some questions I am reading for your understanding. It is saying that question number 1, reason based question, double coincidence of bonds is an essential requirement of exchange. Do you agree? Double coincidence of bonds is an essential requirement of exchange. No, false. Though it is an essential requirement for the barter economy, in a money economy, exchange can take place without double coincidence of bonds. तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट था, मगर वो कब था? बार्टर सिस्टम में. आज की तारीख में हमें एक्सचेंज करने के लिए डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है. फेस वैल्यू ऑफ मनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू. वी हैव टू से ट्रू और फॉल्स. क्या फेस वैल्यू हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है? नहीं. हमारे पास आज जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं वो सब क्रेडिट मनी है. क्रेडिट मनी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने, जिसकी फेस वैल्यू उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस चीज के वो बने हुए हैं. तो इसका आंसर भी फॉल्स है. इन केस कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इंट्रिंसिक वैल्यू में ओवर टाइम एक्सीड इट्स फेस वैल्यू. तो हमेशा फेस वैल्यू ज्यादा नहीं होती. अगर वो मनी गोल्ड और सिल्वर का कोई कॉइन है तो उसके अंदर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, तो हमेशा ज्यादा होगी ऐसा नहीं आएगा, इसके अंदर फॉल्स आएगा, क्योंकि सिर्फ क्रेडिट मनी में ऐसा होता है. मगर जरूरी थोड़ी है कि क्रेडिट मनी कोई मनी माना जाए. अगर नोट्स एंड कॉइन्स कोई गोल्ड एंड सिल्वर के भी हैं तो उनके अंदर तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है. थर्ड, स्टॉक ऑफ मनी विद द मनी इशुइंग अथॉरिटीज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि सप्लायर्स का पैसा कभी भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड होता ही नहीं है. फॉल्स. सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ इट with the money issuing authorities. Fourth is, fiat money is the same as fiduciary money. No, because fiat money क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, जबकि fiduciary money कौन सा होता है? जो हम आपस में ट्रस्ट के कारण एक्सेप्ट करते हैं. False. Fiat money is the money backed with order of the government, whereas fiduciary money is the money backed with the mutual trust between the payer and payee. Fifth, money supply includes demand deposits of the people with the commercial bank. Money supply के अंदर लोगों का डिमांड डिपॉजिट आता है क्या? Yes, it is true. Demand deposit of the people with the commercial bank is a component of money supply because these deposits are converted in cash just by writing a check. These are checkable deposits. Double coincidence of bonds is a typical feature of monetary system of exchange. क्या डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड मॉनेटरी सिस्टम का फीचर है? नो, फॉल्स है ये भी. डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड
इज ए टिपिकल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का फीचर था वो, मॉनेटरी सिस्टम का नहीं था। मनी हैज सेपरेटेड द एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन HOTS आल्सो। मनी के इंट्रोडक्शन के कारण सेल और परचेज दोनों अलग अलग हो गई हैं। आज हमें एक्सचेंज करने के लिए हम सेल अलग कर सकते हैं, परचेज अलग कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हमें एक सामान देना पड़ता था और दूसरा सामान लेना पड़ता था। आज ऐसा नहीं होता, आज सेल अलग होती है और परचेज अलग होती है। 8 पॉइंट है, 8 क्वेश्चन है, देयर इज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कोई एक्सचेंज नहीं होता था, कोई मीडियम नहीं था। ऐसा तो है नहीं, मीडियम तो था, वो गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये भी फॉल्स है। अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स themselves आर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स। ऑफ कोर्स देयर इज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, ये हम कह सकते हैं। देयर इज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन बार्टर सिस्टम, यस दिस इज ट्रू। बार्टर सिस्टम में कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, हम हर एक चीज का मेजरमेंट एक ही चीज में नहीं निकाल सकते थे। मनी में भी यूज एज ए कमोडिटी, क्या मनी को हम कमोडिटी के रूप में यूज कर सकते हैं? ट्रू, बिकॉज इट हैपन्स व्हेन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड्स इट्स फेस वैल्यू। अगर मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो हम उसको एज ए कमोडिटी भी यूज में ले सकते हैं। क्योंकि आज मान लीजिए जो सिक्का है, पुराने जो सिक्के होते थे उनके अंदर जो आयरन होता था उसकी कीमत आज 1 रुपए से भी ज्यादा है। तो अगर 1 रुपए के सिक्के का आयरन उससे भी ज्यादा है तो वो एज ए गुड्स भी काम में आ सकता है, उसको लोग बाग गला के बेच भी सकते हैं। क्रेडिट मनी इज द मनी रिसीव्ड एज ए क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। क्रेडिट मनी, मनी से जो अपन बैंक से जो उधार लेते हैं उसको नहीं कहते, क्रेडिट मनी तो उसको कहते हैं जिसकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होती है। तो ये भी फॉल्स है। मॉनेटरी सिस्टम फैसिलिटेट मच ग्रेटर एक्सचेंज देन द बार्टर सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम के बाद हम बल्क में परचेजिंग कर सकते हैं, हमें डबल कोइंसिडेंस की जरूरत नहीं है और मनी कॉमनली एक्सेप्टेबल है, तो हम कितना भी परचेजिंग कर सकते हैं। M1 मेजरमेंट सप्लाई ओनली इंक्लूड्स नोट्स एंड कॉइन्स, नहीं, ये भी फॉल्स है। उसमें करेंसी भी आती है, डिमांड डिपॉजिट भी आता है और अदर डिपॉजिट भी आते हैं। 14 क्वेश्चन है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रेफर्स टू ओनली द फिएट मनी इशूड बाय द RBI। क्या मनी सप्लाई में सिर्फ फिएट मनी आता है? नो, मनी सप्लाई के अंदर डिमांड डिपॉजिट भी आते हैं और अदर डिपॉजिट भी आते हैं, और जबकि उसमें फिड्यूशियरी मनी भी आ जाता है। कॉमर्शियल बैंक प्ले नो रोल इन द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्या मनी सप्लाई में कॉमर्शियल बैंक का कोई रोल नहीं है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करके सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा सकते हैं। 16 है, कैश रिजर्व विद द बैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। दिस इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि सिर्फ जितना कैश नहीं है ना इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा तो डिमांड डिपॉजिट आपको मिल जाएंगे। कैश रिजर्व आर नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, वो मनी की कंपोनेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो कॉमर्शियल बैंक का पैसा है। बिकॉज कैश रिजर्व ऑफ द सप्लायर ऑफ मनी इज नॉट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ this chapter is complete. You have to make complete notes of this chapter, and also you have to do all the questions of NCERT question, miscellaneous question 3 and 4 marks and 6 marks, and also you have to do CBSE questions पेज नंबर 147 से लेकर 149 तक, जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, और अगर उनमें हिंट भी लिखी हुई है तो भी वो आपको कॉपी में करने हैं, और अगर रिपीट हो रहा है तो भी करने हैं। ये कोई आपको बहाना नहीं बनाना कि ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है तो वो पहले 3 मार्क्स में पूछा गया है, फिर 6 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपको उसका आंसर पहले 3 मार्क्स का लिख के बताना है, फिर 6 मार्क्स का भी लिख के बताना है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।